Hello everyone, this is Sanjana and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great in your life. So in today's video, I'll be discussing about the difference between these wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve. So I'll be discussing the difference among these three. And after that, I'll be discussing the most important and repetitive questions from UPSC and SSC examination. If you're preparing for any competitive exam, this video is really gonna be helpful for you all. So stay tuned till the end of this video. And so without any further delay, let's move to the slides. So now this is the topic, as I mentioned it before, that we'll be discussing the difference between biosphere reserves, wildlife sanctuary and national park. And in this video, I'll be more focusing on the biosphere reserve and national park. I have not included the wildlife sanctuary just because the video will be too long. Therefore, I'm just discussing the important biosphere and national park. So okay, before explaining any other thing, let us understand some of the basic thing that would definitely make us easy to understand the rest of the topic. Just imagine this is a big field, and this big field, there is a huge protection area. This field is basically a huge protection area, fine, and this comes under the government jurisdiction but with the less restrictions. यानी कि इसको ऐसे समझो, ये एक बड़ी सी फील्ड है जो कि एक प्रोटेक्शन एरिया है फ्लोरा और फोना का. ये जो एरिया है ये आता है गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर, बट जनरल पब्लिक का एक्सेस है, वहाँ जनरल पब्लिक जा सकती है बट विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस. मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे बट बहुत थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं. जनरल पब्लिक का आना जाना हो सकता है, ठीक है. वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो भी ट्राइबल लोग हैं जैसे, तो उनकी एक्टिविटीज़ पॉसिबल है बट फिर भी वहाँ थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है. आई होप ये समझ आ गया हो कि एक बिग फील्ड है जिसमें जो बिग फील्ड है वो एक प्रोटेक्शन एरिया है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है. वहाँ पे जनरल पब्लिक का एक्सेस है बट फिर भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर, ठीक है. इस एरिया को हम कहते हैं biosphere reserve. Now let me make you understand in English. This is a big protection area and this protection area comes under the government jurisdiction but with less restrictions. In this biosphere reserve, general public is allowed but with very minimum restrictions. Like restrictions are there but that too very minimum. Fine. Now moving further, in this biosphere reserve there are small blocks. Like small blocks means there are small areas which we consider as national park and wildlife sanctuary. So the thing which need to be understand here, that national park and wildlife sanctuary will come under the biosphere reserve only. However, national parks are highly restricted as compared to the wildlife sanctuary and biosphere, where general public is completely not allowed, while on the opposite side we talk about like wildlife sanctuary, they are restricted but not as restricted as compared to the national parks, and the general public can go, like excess of the general public is allowed. तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आपकी नेशनल पार्क में होती है, उससे कम अगर आए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उससे कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में. तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज नेशनल पार्क, then wildlife sanctuary, and then comes your biosphere reserve. I hope you all have understood the concept easily in a much better way. I have tried my level best to make you understand. Though if somebody is not clear with the concept, they can ask me in the comment section. Now coming to the second slide, which talk about the background of the topic, that is what is national park. So जैसे मैंने बताया कि नेशनल पार्क जो होता है वो एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है. ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड और सिक्योर्ड एरिया होता है जस्ट बिकॉज टू प्रिजर्व देयर इकोसिस्टम, एंड इट ऑल्सो हैज़ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट देयर. दिस एरिया इज़ बीन यूज्ड फॉर योर एजुकेशन रिसर्च पर्पज, एंड सेकेंडली इट कैन बी यूज फॉर योर tourism as well.
So now whenever somebody asks you what is national park are highly protected area where ecosystem is being preserved by the government with high security and restrictions, and this area is also used for education, research and tourism. Fine, just now finally have a quick look on the slide as well. यहाँ पर ना एक चीज़ है, जैसी नेशनल पार्क आपको दिखे ना, आपके दिमाग में फट से क्लिक हो जाना चाहिए कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. फर्स्ट नेशनल पार्क in India was Jim Corbett National Park, named after the naturalist Jim Corbett in 1936. The national park in India are highly secured and protected and allow minimum human interference in them, as I told you before. Any human activity which harms the environment and wildlife are completely prohibited here. So I hope ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट आपको साथ ही साथ क्लियर होते जा रहे होंगे. कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस देयर. Now moving to the next slide which talks about the difference between national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की. तो नेशनल पार्क प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू बोथ फ्लोरा एंड फोना. ठीक है, फ्लोरा एंड फोना दोनों प्रोटेक्ट किए जाते हैं. ग्रेजिंग, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट एट ऑल अलाउड हेयर. ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन इज़ नॉट अलाउड. प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट अलाउड. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जाके वहाँ ज़मीन खरीद ले. ठीक है, और इसकी जो है वो एक फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है. ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को. ग्रेजिंग, कल्टिवेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड बट विद लेस रिस्ट्रिक्शन इट इज़ अलाउड. फाइन, प्राइवेट ओनरशिप इज़ अलाउड. और फिर जो बाउंड्रीज होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो इतनी अच्छे तरीके से डिमार्केटेड नहीं होती. बाउंड्रीज आर नॉट well demarcated. The last point you can see. Now, okay, moving to the next one, biosphere reserve. Flora and fauna are protected as like जो तीनों में ही हो रहा है. फ्लोरा एंड फोना आर बीन प्रोटेक्टेड. ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर आता है. उसके बाद जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व की वो फिक्स्ड होती हैं. और इन तीनों में बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो सबसे बड़ा एरिया होता है क्योंकि उसी के अंदर तो हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं. तो सबसे बड़ा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद हो गया नेशनल पार्क एरिया वाइज. अगर सिक्योरिटी वाइज देखें, रिस्ट्रिक्शन वाइज देखें तो सबसे हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है नेशनल पार्क, उससे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उससे कम बायोस्फीयर रिजर्व. So I hope you have understood it clearly. So moving further, now second slide is talking about the type of national parks in India. So here we are going to talk about two national park majorly. First is the terrestrial national park and the second one is the marine national park. So as the term defines itself very clearly, the terrestrial means the earthly, means the land, and the marine means the water. So coming to the first type, that is your terrestrial national park. This is basically a land that protect the wildlife and preserve it on the land. तो ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करके रखे लैंड के ऊपर, उसे हम टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क कहते हैं. इट इज़ प्रोटेक्टेड द वाइल्ड लाइफ and preserve it on the land. The area is 1000 hectares, come under the guidance and the care of the government. Now moving to the next one, that is your marine national park. So marine national park, as the name implies, are the park designed beside water bodies के बगल में या पास में जो भी parks होते हैं उसे हम marine national parks कहते हैं. They are primarily seas or lakes and they promote recreational activity that benefits the coastal communities. Here coastal community means the small towns or the villages that are highly reliant on the coastal goods and services. Fine. Now so there are two national park. First one is your terrestrial, the second one is your marine. terrestrial land पे होते हैं, marine समुंदर किनारे या किसी भी वाटर बॉडी के किनारे होते हैं जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं
ताकि कोस्टल कम्युनिटीज को बेनिफिट हो सके. होप दिस इज क्लियर नाउ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इफ somebody wants to read it, just pause the video once and read it out quickly. So I'm moving to the next one now. Next one is the same. The national park are protected by the government to preserve the natural environment, wildlife, flora and fauna. National park are also promote education in the field of environmental studies. So the first point would be like they provide original environment for the wildlife. Second point would be it promote the education in the field of environmental studies. Thirdly, the third point would be it also promote the outdoor recreational activities, as we have read in the marine national parks. The last one is the importance of national park is preserve biodiversity, which if somehow get disturbed may affect the ecosystem of particular area on a large scale. I have 5 points here. I have also underlined them. So just go through with these points thoroughly once. Now let's talk about the facts of national park. अगर एग्जाम में आता है कि प्रेजेंटली 2003 डेटा के हिसाब से कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, तो योर आंसर वुड बी 106 नेशनल पार्क्स आर देयर प्रेजेंटली इन इंडिया. फर्स्ट फैक्ट इज टॉकिंग अबाउट द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. आंसर वुड बी योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क. तो द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज हेली नेशनल पार्क, is the oldest national park in India. Now presently it is known as Jim Corbett National Park. तो यहाँ आंसर 2-3 तरीके से आ सकता है कि किस पार्क का नाम पुराना हेली नेशनल पार्क हुआ करता था. तो उसका आंसर आ सकता है योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर ऑल्सो अगेन वुड बी योर जिम कॉर्बेट नेशनल. And before moving further, just read out this box as well. So the Jim Corbett National Park is a national park that is located in Nainital district of Uttarakhand state. This is the first and the oldest national park in India. It was established in 1936 during the British Raj and was named Halley National Park after William Malcolm Halley. He was a governor of United Province in which it was then located. I hope this is clear now. Moving to the next fact, that is talking about the largest national park in India. Largest और biggest national park जो है वो हमारा हेमिस national park है. That is located in Ladakh and with an area of 3,350 kilometers square. The question comes like, which is the largest national park or the biggest national park? The answer would be your Hemis National Park. And this Hemis National Park is located in Ladakh region. To the third fact, which is talking about the floating national park in India. This question have come multiple times in the examination, that which one is your floating national park in India. The answer will be your Kaibul Lamjao National Park. That is your floating national park. It is the only floating national park in India. Okay, and this is located in your Manipur. Just cram this point. Thing which comes here, that if the examiner asks you about the largest national park or the biggest national park or the highest national park, the answer will be your Hemis National Park. Floating national park, the answer will be your Keibul Lamjao National Park, present in Manipur. If they ask you about the smallest national park, सबसे छोटा national park, that is present in your Andaman Nicobar Island, South Baton Island National Park. Fine. I hope this slide is much clear to you. Now moving to the next one. Now coming to the main part of the video, जहाँ हम बात करेंगे different national park के different states में. So the first state we're gonna cover is your Jammu and Kashmir and the Ladakh region. तो जम्मू कश्मीर को, और यहाँ मैंने ना सिर्फ important national park cover करे हैं, ठीक है, जो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में और जो कई बार पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन, दे रिपीट इन द एग्जामिनेशन. आई हैव ओनली मेंशन दोज इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड आई एम डैम श्योर इफ यू कवर दीज नेशनल पार्क ना, you will definitely score good marks in your examination. Coming back to the Jammu Kashmir, first national park here is your Salim Ali National Park, which is also known as City Forest National Park.
तो जो सलीम अली है उसी को हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते हैं. ओके. Second one is your Dachigam National Park. Here NP is the abbreviation of your national park. I hope you all are getting it. So the second one is your Dachigam National Park. The third one is your Kishtwar National Park, that is also in your Jammu and Kashmir region. And the fourth one is your Hemis National Park. Hemis National Park is the largest, and what else is your highest and the biggest national park. But this Hemis National Park is present in your Ladakh region. Mind this thing. Okay. Now come to the next state, which is your Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है. पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है सिम्बलवारा नेशनल पार्क, एंड द थर्ड वन इज योर खीर गंगा नेशनल पार्क. One thing here coming to my mind that I hope you all are adding these points in your notes or making your own notes here with this video, because I don't know how you'll be remembering these all points. So अगर नहीं कर रहे हो नोट्स में ऐड ये पॉइंट, या अपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो इन पॉइंट्स को ऐड कर लो, क्योंकि आप अपने एग्जाम तक तो सब भूल जाओगे. तो इसलिए इन पॉइंट्स को लिख लीजिए कहीं. मेक योर ओन नोट्स. स्टेट पे आते हैं, दैट इज योर उत्तराखंड. उत्तराखंड में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है. फर्स्ट वन इज योर नंदा देवी नेशनल पार्क, सेकंड वन इज योर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, देन थर्ड वन इज योर राजाजी नेशनल पार्क. राजाजी नेशनल पार्क हैव कम मल्टीपल टाइम, जस्ट मार्क दिस नेशनल पार्क इज इम्पॉर्टेंट. देन द फोर्थ वन इज योर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, एंड द फिफ्थ वन इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ओके, तो यहाँ ना इनको जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं. यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है. बिहार में है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क. फिर आ जाओ उत्तराखंड में है आपका बेटला नेशनल पार्क. उड़ीसा में है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपल नेशनल पार्क. फिर आ जाओ बंगाल पे. तो वेस्ट बंगाल पे जैसे हमारे पास सुंदरबन भी है. उसके बाद वी हैव लाइक 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क. आई एम जस्ट मूविंग द स्लाइड्स नाउ अ लिटिल फास्टर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. सो वी हैव राजस्थान. There are 6 important national park in Rajasthan: Sariska and Clyde, Ranthambore. Then we have Gujarat also. गुजरात में गिर नेशनल पार्क है हमारे पास, जैसे ब्लैकबर्ग है. Just take a screenshot. फिर we have a तेलंगाना. Then we have मणिपुर. मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क था, जो कि और किस नाम से जाना जाता है, फ्लोटेन नेशनल पार्क के नाम से. देन वी हैव मिजोरम. मिजोरम में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं. फिर है नागालैंड. देन वी हैव तमिलनाडु. तमिलनाडु के बाद हमारे पास मेघालय, और मेघालय के बाद गोवा. गोवा में सिर्फ 1 नेशनल पार्क है. देन वी हैव महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 3, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड चांडोली नेशनल पार्क. फाइन, दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट. देन इन हरियाणा वी हैव सुल्तानपुर एंड कलेसर. देन इन आंध्र प्रदेश वी ओनली हैव 1 नेशनल पार्क. देन छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं. इन सब के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए. मैं इसलिए जल्दी चल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद आ जाइए आप कर्नाटका में. कर्नाटका में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं. देन मूविंग टू द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम मध्य प्रदेश. So in Madhya Pradesh we have 8 important national park. Then moving to the next one, that is your Kerala. Kerala state में we have 4, not 4. In Kerala we have 6 important national park, and this Silent Valley is very important. Periyar, Silent Valley, these are very important. And this Anamudi National Park, these are asked many times in the question. Then we have Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है. फिर आ जाओ अंडमान निकोबार पे. अंडमान निकोबार में हमारे पास 8 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है. होप दिस इज मेकिंग यू सेंस कि कैसे याद करना है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट किड कि मैं बताऊँ हर एक चीज़ मैं रीड करके यहाँ बताऊँ आपको. तो ये सारे नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डोंट टेक देम लाइटली. So okay, now moving to the next part of the video, that is your biosphere reserve. मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था. जो सबसे आउटर लाइन थी वो थी बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं.
ठीक है। और अगर बात करूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती। तो याद रखना कि अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है तो इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगी। दोबारा से देखो एक बार, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है इंडिया में। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये कंजर्व करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखते हैं, उसके बाद मेंटेन करते हैं, मेंटेन बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द नेचर। ये जो कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आया था 1971 में। इसको यूनेस्को ने लॉन्च किया था। उस टाइम जो यूनेस्को ने लॉन्च किया था उस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है। इंडिया में ये प्रोग्राम कब आया? इट वाज लॉन्च्ड इन 1986। और उस इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका नाम था नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जब यूनेस्को ने वर्ल्ड में लॉन्च करा 1971 में तो प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ 1986 में तो इस प्रोग्राम का नाम था नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1986. I hope this is clear to all. Now moving to the next one. So these are 18 biosphere reserve and these 18 are definitely important for our examination. और इन बायोस्फीयर रिजर्व को आप नेशनल पार्क से थोड़ा सेपरेटली एक कॉलम बना के बायोस्फीयर रिजर्व को मेंशन करना अपने नोट्स में। ठीक है। फर्स्ट वन है हमारा नीलगिरी, द सेकेंड वन इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। सो दीज 18 आर इम्पॉर्टेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेटर कैन ऐड इन योर नोट्स डाउन। 18 में से भी जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं वो है जैसे आपका पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस कई बार पूछा गया है, रन ऑफ कच्छ कई बार पूछा गया है, दिबांग पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर देखो एग्ज़ाम पास करना है तो यू डेफिनेटली नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर देखो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं दैट इज़ रियली गुड। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखिए। अगर नहीं आते तो गूगल करके आंसर्स लिखिए और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने नोट्स में भी ऐड कीजिए। सो या, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करो, लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। मैंने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे आके इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं इजीली। और ये जो व्हाट्सएप चैनल है मैंने अभी नया बनाया है तो मैं सारी चीज़ें इस पर अपलोड कर रही हूँ और बहुत एक्टिव हूँ। तो आप जल्दी से चाहिए, अगर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए या कुछ भी अपडेट चाहिए मेरे चैनल से रिलेटेड, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए अभी। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। सो या, दैट्स ऑल। दिस साइड संजना एंड कीप ग्रोइंग। बाय।